دنیا نے ترقی تو بہت کر لی، مگر موت ایک ایسا معمہ ہے جسے نہ آج تک کوئی سمجھ سکا ہے نہ سمجھا سکا۔ موت کا راز جاننے میں تو شاید ابھی کئی صدیاں لگ جائیں، مگر آج چلتے ہیں قبرستان کی طرف اور جانتے ہیں کہ شہر خاموشاں میں دن رات کیسے گزرتے ہیں۔ قبرستانوں کے رازدان گورکن ہوتے ہیں۔ آئیے آج ملتے ہیں گورکنوں سے اور جانتے ہیں قبرستان کے اندرونی حالات کیا ہوتے ہیں۔ کیا رات کو روحیں آتی ہیں؟ کیا آسیب ہوتا ہے؟ کیا جادو ٹونا چلتا ہے؟ اور کیا گورکن کیا کیا گل کھلاتے ہیں؟ اور آئیے یہ سب کچھ جانتے ہیں خود گورکنوں سے۔ سے رخصت ہوتے ہیں تو قبرستان آتے ہیں۔ آپ کی پیدائش ہی یہیں ہوئی، یہ بڑی عجیب بات نہیں؟ دادا جی میرے ماشکی ہوندے سن، میرے دادا جی ایتھے 95 سال انہوں نے کی تھی خدمت، پھر میرے والد صاحب دی ایتھے پیدائش ہوئی، انہوں نے کیتا ہے، پھر میری ہوئی ہے پیدائش، میں بھی ایتھے اینا قبراں دے جی کھیڈیاں، بچپنا میرا گزرے ایتھے 24 گھنٹے اسی رہنے ہی ایتھے۔ قبروں کو کھودنا اور مردوں کو دفنانا آپ کا معمول ہے، کیا اس سے آپ کا موت کا خوف کم ہو گیا ہے یا پھر اور بڑھ گیا ہے؟ بڑھیا بھی ہے، عادی بھی ہو گئے ہیں، خوف ہی ہے۔ کئی دفعہ ہویا کہ ویکھیا کہ ٹانچے ہی پیا ہے، کہ وہ ویکھی دے کہ یار ایک دن اسی بھی انجی ہو جانا، ختم ہے نہ مٹی ہو جانا۔ میانی صاحب قبرستان میں ایک قبر کھودنے کے کتنے پیسے لیے جاتے ہیں اور اس کا سرکاری ریٹ ہے کیا؟ 1000 روپیہ پرچی کا جمع ہوتا ہے ادھر انٹری، اور 8000 روپیہ ہم لیتے ہیں ادھر ود مٹیریل۔ ایک قبر کو کتنے لوگ مل کر کھودتے ہیں؟ 2 کھودنے والے ہوتے ہیں، 2 مزدور جو اینٹیں وغیرہ سیمنٹ لے کر آتے ہیں، اور ایک مستری ہوتا ہے۔ ہر ایک کو کتنے پیسے ملتے ہیں؟ مستری کو ہم دیتے ہیں 600 روپیہ، اور 600 روپیہ مزدور کو، اور کچھ مٹیریل آ جاتا ہے، کچھ 1500 ہمیں مل جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ کیا وقت کے ساتھ ساتھ قبر کھودنے کا طریقہ کار بھی بدلا ہے؟ جی بدلا ہے۔ پہلے ہوتی تھی لہر والی قبر۔ لہر والی قبر کیا ہوتی؟ پہلے سیدھی کرتے تھے ہم، پھر نیچے زمین کے نیچے جاتے تھے ہم، پھر اوپر گڑے لگاتے تھے۔ اب ہم سیدھا ٹویا نکالتے ہیں اور باؤنڈری اینٹوں کی کر دیتے ہیں، کیونکہ بہت پرانا قبرستان ہے، خمیر مٹی ہو گیا ہے، سب کچھ مل گیا ہے، تو اس میں طاقت نہیں رہ گئی، ہڈیاں یہ ماس مٹی ہو جاتا ہے، عرش ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ایک قبر میں کئی مردے دفن ہوتے ہیں۔ میانی صاحب تو بہت قدیمی قبرستان ہے، یہاں کیا صورتحال ہے؟ کوئی ہوگا میرے خیال ایک دو تین ہو گئے میرے ہوش میں، کیونکہ پہلے ہوتی تھی کچی، اب بن رہی ہے پکی نیچے سے، وہ دوبارہ نہیں خراب ہوتی۔ اگر قبر پختہ نہ ہو تو اس کی جگہ پر دوسرے مردے کو کتنے سال بعد دفنایا جا سکتا ہے؟ 10 سال، 15 سال یا 20 سال؟ وارث آتے رہیں، دیکھ بھال ہوتی رہے تو ساری زندگی بھی نہیں ہوتی۔ جو نہیں آئے گا، بارشیں پڑتی ہیں، وہ کچی ہوتی ہے، وہ قدر ہو جاتی ہے۔ قبر کے لیے جگہ کا انتخاب کون کرتا ہے، گورکن یا پھر مرنے والے کے رشتہ دار؟ مالک کرتے ہیں کہ یہ ہماری فیملی کی قبریں ہیں، اس کے ساتھ ہو جائیں۔ آپ نے قبرستان میانی صاحب اور لاہور میں مدفون مشاہیر کے بارے میں
किताबें लिखी, तहकीक की। मियानी साहब इसे क्यों कहा जाता है और ये कितना पुराना कब्रिस्तान है? लाहौर शहर के बाहर जो गांव आबाद थे, उनके बाहर एक गांव था, मौजा था मजंग। मजंग के साथ एक महल्ला था मैनी। पंजाबी ज़बान में मैनी उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पे मौलवी आलम फाजिल मियां साहब रहते थे। और इनमें हज़रत ताहिर बंदी की सरकार, नक्शबंदी कादरी, इनकी रिहाइश वहाँ पे थी। इनकी वफ़ात हुई 1630 में। इनकी वफ़ात के बाद गारतुगरों ने इस महल्ले को लूट लिया और जाते हुए इस महल्ले को आग लगा गए। उस दौरान जो मैयतें हुई, जो लोग मारे गए, उन्हें इर्द गिर्द इनके मज़ार के इर्द गिर्द दफना दिया गया। इस तरह ये महल्ला जो मैनी कहलाता था, वो महल्ला जो मैनी से वो मैनी से कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। इसकी कितनी अराजी है, कितनी जगह है? ये अपने शाहबुद्दीन गौरी के ज़माने में आबाद हुआ और शेर शाह सूरी ने 40,000 कनाल ये ज़मीन मुख्तस की थी, कब्रिस्तान के लिए मुख्तस की थी। अब ये सारा श्रिंक होकर कब्जा ग्रुपों के कब्जे में आके ये महबा मुश्किल 12-13,000 कनाल जमीन रह गई। सारा पाकिस्तान ही कब्जा ग्रुपों के कंट्रोल में है। बिल्कुल। ये आखिरी रामगाह दुल्ला भट्टी शहीद की है, जिसे 1589 में डंडा बाजार के बाहर फांसी दी गई। और ये अकबर आजम का दौर था और इसने अपने आज़ादी हासिल करने के लिए बादशाह के खिलाफ बगावत की थी। जब इसने बागियाना रवैया अख्तियार किया तो अक्सर पेशतर ये नारे की शक्ल में इसे लफ्ज़ इस्तेमाल किया करता था, मैं पन्ना दिल्ली दे किंग है। ज़ात पात, तबकात, ये शायद तसव्वुर किया जाता है कि ये कब्रिस्तान में नहीं होते, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान के बहुत से कब्रिस्तानों में तबकात और ज़ात पात की तकसीम हर जगह नज़र आती है। बहुत से लोगों ने अपने ख़ानदान के नाम से इहाते बना रखे हैं और कई एक ने तो पहले से अपनी कब्र की जगह अलाट कर रखी है। ये जगह जहाँ मैं बैठा हूँ, ये भी बाज़ार हुस्न में रहने वालों के लिए मुख्तस है। अगर मौसीकार फिरोज़ निज़ामी यहाँ पर दफन है तो अदाकारा नादरा भी यहीं पर मदफून है। गुलकार नसीम बेगम वो यहाँ पे हैं जिन्होंने अपने मिली नगमे और जंगी तराने गाए। और उसके अलावा अपने अदाकारा बाबरा के वाले साहब चौधरी मोहम्मद शीफ, मुख्तार बेगम और सरदार बेगम। और इनके नाम के आगे आपको इल्म होगा कि अपने वालिद साहब का नाम नहीं लगाते, ये नाम के आगे वालदा का नाम होता है। और इसके हाथे का नाम भी इन्होंने हाथे मौसीका रखा हुआ है। बाबा पहले गल्लां ही नहीं रह गई, हम दसा नवी नवी चौधरी आ गई, जोड़ा जी करता उन्होंने कर देंगे कबर से कबर कड्डो जी बाहर कड्डो, जी शिकायत आ गई बाहर कड्डो। अभी हम दसो सारी उम्र इतने गुजारी है, बच्चा भी मर गया, भरा भी मर गया, निके निके मेरे बच्चे ने, मैंने चुक के बाहर मारिया। इतने जाइए सुनता ही कोई नहीं, उन्होंने पता इन्ना चिर दफना तेरा कोई इलाज नहीं है, लंबर ही दे दियो, हमें 6-7 दिन ही लंबर आवे, चलो बच्चे मेरे खान वो इतों भी कहना चुको मंजी। बतौर सेक्रेटरी कब्रिस्तान कमेटी आपने क्या क्या इस्लाहात की? जो प्रोसीजर था तदफीन का उसको हमने बेहतर किया है। हमारे पास 223 गोरकन थे, इसमें सिफारशी भी लोग होते हैं, वो भी आ जाते हैं। बेसिकली दे आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इनको हम एक परमिट देते हैं यहाँ काम करने का, ये गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ पे नहीं होते। तो कमेटी की मीटिंग में ये मंजूरी हुई कि राइट साइजिंग की जाए। इनमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी थे जिनके बारे में अच्छी रिपोर्ट्स नहीं थी। गोरकनों के बारे में क्या क्या शिकायत है? इनके एक तो मेन जो शिकायत थी वो ओवर चार्जिंग की थी,
यहाँ पे ये कोई रेट फिक्स नहीं था। ये लोग रात को कोई आई तदफीन के लिए अपनी मर्जी के उनसे पैसे लेते थे। लोगों को सबसे बड़ी कंप्लेंट ये थी, गरीब आदमी के लिए वैसे ही मसाइल थे ये बात। दूसरी कंप्लेंट ये थी कि कुछ माफियाज थे जिनमें मनशियात का कारोबार था, उसमें भी ये लोग इन्वॉल्व थे। कुछ इनमें कब्जा ग्रुप जो माफिया था उनके साथ भी मरासिम इनके पाए गए। कुछ ऐसे लोग थे कि जिन्होंने नंबर अलॉट करवाया हुआ था लेकिन वो काम नहीं करते थे, वो गाड़ियों में घूमते थे और उन्होंने आगे 10-10, 12-12 वर्कर रखे हुए थे। ज्यादातर कंप्लेन ये थी कि यही वो लोग हैं जो गलत कामों में शामिल हैं। क्या गोरकन की इतनी कमाई होती है कि वो गाड़ियों में घूमता फिरे? उन्हीं को हम ठेकेदार गोरकन कह रहे हैं ना। गोरकन बेचारा तो इतने वो नहीं होता, माली तौर पे इतना मुस्तहकम नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों ने गलत नंबर अलॉट करवा लिए। उनका मिशन यहाँ पे गोरकन या तदफीन का नहीं था। उन्होंने आगे 10-10, 11-11 वर्कर्स रखे हुए थे जिनको वो तनख्वाहें देते थे। लोग तो कहते हैं ये हड्डियां बेच देते हैं, मुर्दे बेच देते हैं, हत्ता के कफन तक निकाल लेते हैं। ज़माने कदीम में शायद होगा, अब कफन की वो अहमियत नहीं रही कि उसको चोरी किया जाए या उससे कोई किसी का कोई बन जाए। हड्डियों के बारे में रिपोर्ट्स मिली थी कि हड्डियां बेची जाती हैं, और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कुछ अदवार में मिली हैं कि जो नए मेडिकल कॉलेजेस बनते हैं प्राइवेट, उनको जो डेड बॉडीज हैं वो भी दी जाती हैं। कई गोरकन कहते हैं कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी कब्रिस्तान की खिदमत में गुजार दी। अब आखिरी उम्र में उन्हें फारिग करके उनके साथ बहुत ज्यादती की गई। ये कोई जॉब नहीं है या हमने कोई इसको गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ पे इनको नहीं रखा हुआ। वो आदमी जिसके बेटे आगे काम कर रहे हैं और वो बूढ़ा हो गया, वो खुद काम नहीं कर रहा, उसका नंबर हमने बंद कर दिया, उसके बेटे आगे काम कर रहे हैं और ये नस्ल दर नस्ल सिलसिला चल रहा है। क्या कब्रिस्तान में इहाते बनाना और कब्र के लिए पहले से जगह खरीदना कानूनी तौर पर जायज है? जो हाथे पहले से वो चूंकि अलॉटेड है, उसके बकायदा जारी नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, अब उनको तो हम नहीं उसको कुछ कर रहे। अब हाथा तो दूर की बात है ना, सिंगल कब्र भी हम अलॉट नहीं करते या रिजर्व नहीं करते। जिंदा लोगों की दुनिया शनाख्त और विरासत की दुनिया है, मगर कभी कभी कुछ ऐसे बदनसीब भी होते हैं जिन्हें मरने के बाद लावारस तौर पर दफनाया जाता है। मेरे पीछे आपको जो कब्रें नजर आ रही हैं, ये उन्हीं लावारसों की कब्रें हैं जिनके वारिस मिल नहीं सके और इन्हें ईदी फाउंडेशन ने या ज़िली इंतज़ामिया ने अपने तौर पर दफनाया है। शायद अपने तौर पर वो बहुत बड़े लोग होंगे, शायद उनकी कोई वजह शोहरत भी होगी, शायद उनके अजीज, उनके अकारब भी कहीं दूर बसते होंगे, लेकिन आखिरी वक्त में वो मिल ना सके और वो बेनंगो नाम यहाँ मदफून हो। आप कब्रिस्तान से कितने सालों से वाबस्ता है? हम 5 नस्लों से ये काम करते चले आ रहे हैं। और आपको खुद कितने साल हो गए? तकरीबन 50 साल के करीब हो गए। अक्सर लोग इल्जाम लगाते हैं कि बाज गोरकन हड्डियां बेच देते हैं। कब्रिस्तान खुद तजाबियत का इतना बढ़ाव पड़ा है कि ये ज्यादा 14-15 दिनों में हर एक चीज गल जाती है, इसकी निकालने की तो हिम्मत ही नहीं किसी को पड़ती। एक वाकया बड़ा मशहूर हुआ था कि वो लाशें निकाल के खा जाते हैं। ये भी गलत है। वो गोश्त जो बदबूदार हो गया वो कैसे खाएगा? गलत या सही, मशहूर ये है कि मुर्दे रात को आपस में मिलते हैं, बातें करते हैं। जी हाँ, ये सच है कि जो अल्लाह के वली और अल्लाह के दोस्त होते हैं ना, वो लोग जिंदा होते हैं कब्रिस्तान में, और रात 1 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक, रात के 3 बजे तक अक्सर ये देखने में आते हैं। आपने खुद कभी देखा है? हाँ, हमारे वाले साहब ने देखा है, हमने खुद अपने बाबा जी को देखा है, हजरत बाबा निज़ाम शाह मजहूब को देखा है, उनके साथ 4 आदमियों के साथ देखा है, जो ज़ाहिरी तौर पर उन्होंने बताया
कि बेटा डरना नहीं, हम लोग खुद बातें कर रहे हैं। आवाज भी आती है? आवाज भी बेकायदा आती है, ऐसी आवाज आती है कि जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं। बाज कब्रों से खुशबू भी आती है, बाज कब्रें रोशन भी होती हैं। खुशबू भी आती है और चिरागा भी जला होता है। आपने कभी कोई देखा जिस कब्र से खुशबू आ रही हो? हाँ, बहुत सारी देखा, क्योंकि दिन रात काम की सर्विस करते हुए देखते हैं कि ये आदमी को 2 महीने हुए हैं, उधर से गुजरे हैं, खुशबू आ रही है। माजी में लोग रात को कब्रिस्तान आने से डरते थे, कहते थे चुड़ैलें होती हैं, जिन होते हैं, भूत होते हैं। आप तो यहाँ रहते रहे हैं रातों को, है कुछ ऐसा? ना इधर चुड़ैल है, ना इधर जिन है, ना कोई ऐसी खौफनाक बातें हैं। जहाँ अजान जाती है, अब मस्जिद में से अजान की आवाज आती है, वहाँ सुन सुन के ये चीजें भाग जाती होंगी, लेकिन यहाँ कभी देखने में नहीं आई। बाज लोग चिल्ले काटने के लिए कब्रिस्तानों में आते हैं, जादू टूना करते हैं, आपने नहीं देखे? आते होंगे, लेकिन हमें नहीं नजर आते, ये ऐसे देखने में नहीं नजर आते, मुशाहदे में नहीं देखा गया। वो पढ़ रहा होगा, अपनी जरूरत के मुताबिक पढ़ रहा है, लेकिन वो ज़ाहिरी तौर पर हमें नहीं ये बताते। अक्सर लोग कहते हैं कि कब्रिस्तान तो जराइम पेशा लोगों की अमाजगाह है, मुनशियात फरोख्त होती हैं, इसीलिए हुकूमत ने गोरकुन कम कर दी है। आखिर कोई इल्जाम था, सच था तो तभी किया ना? ये चोरी चकारी का मसला जरूर है कि ये जंगले लगे हुए हैं, वो लोग जो आदी हैं मवेशियात के, जो नशे वगैरह करते हैं, वो उखेड़ उखोड़ लेते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह मेरे 5 बेटे हैं, पढ़े लिखे हैं, दफ्तरों में काम करते हैं। ये बताएं कि आजकल कफन का जो सेट है वो कितने का मिलता है, जिसमें रूह क्योड़ा और कफूर, क्या क्या होता है सेट में? ये जो है लाल केलू स्लैब पे कलमा शरीफ लिखने के लिए, ये रुई का पैकेट है, ये लोटा, अगरबत्ती, चटाई, हल्की बोतल होती है, ये कफन है। ये मुकम्मल सेट 18 सौ के है। और इससे पहले 2-3 साल पहले कफन कितने का होता था? बड़ी हद 1000 रुपये का होगा। आप कितने अरसे से यहाँ सिक्योरिटी अफसर हैं, और क्या आपने कोई ऐसा वाकया देखा हो जिसने आप पर बहुत गहरा असर डाला हो? हाँ, मैं आर्मी का एसएसजी कमांडो रिटायर्ड हूँ। तकरीबन यहाँ पर 8 साल से एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर की ड्यूटी दे रहा हूँ मैनिसा कब्रिस्तान के अंदर। मैं दीवार के ऊपर खड़ा था, मेरे इर्द गिर्द कोई आदमी नहीं था, किसी ने मुझे राइट साइड से झंझोड़ा और मैं डर गया। मैंने देखा, नजर मुझे कुछ नहीं आया, मैंने वो जहाँ पर खड़ा हुआ था, मैंने जगह थोड़ी शिफ्ट की, तो मेरे आगे से ऐसे जैसे तेज आंधी गुजरती है, ऐसे वो गुजर के वो चीज चली गई। आपके ख्याल में वो क्या हो सकती है चीज? गैब चीज थी वो, हवाई चीज जो मुझे नजर नहीं आई है, जो हमारी समात, हमारी बसारत से बहुत दूर थी। कहा जाता है कब्रिस्तान में बहुत से जानवर होते हैं, सांप होते हैं, आपने भी कभी कोई ऐसी चीज देखी? हमारा एक इधर दरख्त है बहुत पुराना, जिसको हम वन का दरख्त कहते हैं, उसके अंदर जो है ना एक बहुत बड़ा सांप रहता है। कभी वो दरख्त के अंदर चला जाता है, कभी बाहर निकलता है, तो वो देखा सांप, बहुत बड़ा सांप है। काटता नहीं है? नहीं, वो काटता नहीं है, वो लोगों का जो कहना है कि ये जो है ना किसी बुजुर्ग का रूप है। ये कैसे मुमकिन है कि कोई सांप भी हो और वो गोरकुनों को कुछ ना कहे? ये कैसे होता है? काटता तो सबको ही है, अगर लेकिन ये है कि गोरगन ये कहते हैं कि भाई हम आपको कुछ नहीं कहते, दिन को आप हमें रात को ना कहें। ये एक किस्म का समझे कि मुआहदा बनाया हुआ है। तारीख के मुताबिक ये कब्रिस्तान कोई 400 साल पुराना है। इस हिसाब से इसमें लाखों कब्रें होंगी। औलिया अल्लाह से लेकर नामी गिरामी बदमाश तक यही इसी खाक का सामान है। मुसलमानों का यह ईमान है कि शहीद मरते नहीं, हमेशा जिंदा रहते हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। और कब्रिस्तान मियानी साहब में कई शहदा दफन हैं। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद उनमें नुमाया तरीन है। उन्हें पाक फौज में आला तरीन खिदमात और बहादुरी के सिले में 1971 की जंग में निशाने हैदर मिला था। तो उन्होंने वसीयत की थी कि अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मेरी कब्र जो है मेरे दोस्त के साथ बनाई जाए। और ये मौजूदा अपने मज़ार इनका है, ये अभी हालिया 2-3 सालों में बना है। जो इससे पहले बना रहा 30-40 साल बना रहा पहले, वो इनकी दोस्त की और इनकी छत एक थी, अब इसे अलग कर दिया गया है। लाहौर की तारीख
اور قبرستان میانی صاحب کا تذکرہ غازی علم دین شہید کے بغیر نامکمل ہے۔ ان کا مزار میانی صاحب میں مرجع خلائق ہے اور آج بھی لوگ ان کے عشق رسول کے حوالے سے انہیں خراج عقیدت پیش کرنے جوک در جوک یہاں آتے رہتے ہیں۔ تو یہ 1929 کا واقعہ ہے اور اس وقت ان کی عمر صرف 19 سال تھی جب انہیں یہ شہادت کا رتبہ نصیب ہوا، اور ان کا کیس حضرت قائد محمد علی جان نے لڑا اور علامہ اقبال نے ان کے جنازے کو قبلہ دیا اور اپنے ہاتھوں سے انہیں دفنایا۔ ہم سب مشت خاک سے بنے ہیں اور سپرد خاک ہو جائیں گے۔ قبرستان جائیں تو زندگی کی یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے۔ پتہ نہیں کب یہ بلبلا پھٹ جائے اور تہے خاک ہو جائے۔ آج کے دن کا سبق یہ ہے کہ ہم ساری زندگی اس تگ و دو میں لگے رہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ کاش ہم زندگی کی آخری منزل کو بھی خوبصورت بنانے کی کوشش کریں، قبرستانوں کو بھی منظم کریں، گورکنوں کا بھی خیال کریں اور ایسا ماحول بنائیں کہ قبرستان جاتے ہوئے بھی دل خوش ہو۔